यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब सारा डिस्कशन उसी पर ही होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स। चलो चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट बेटा। वी विल बी स्टार्टिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो बेटा, let us suppose I am having some open system. Let us suppose I am having some open system. This is inlet, this is outlet, and of course you know na, open system is also known as what? Control volume. So you know this is control volume. Whatever the fluid I am having inside in this volume, that is control volume, that is my system. And anyone in the class can tell me, any intelligent student of the class can tell me what is this dotted line re baba. Any intelligent student of the class can tell me what is this dotted line re baba. ये dotted line क्या है रे बाबा, ये dotted line क्या है रे बाबा, what is this dotted line, क्या बोलेंगे इसको? It will be known as what? अरे टाइप करो रे बाबा, टाइप करो रे बाबा, क्विकली क्विकली क्विकली। इट इज योर कंट्रोल सरफेस, इट इज योर कंट्रोल सरफेस। क्लियर है यहां तक? कंट्रोल सरफेस बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा, ब्यूटिफुल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट मी से फ्लूइड इज एंटरिंग एट द रेट ऑफ 10 kg per second, and let me say from the outlet fluid is leaving at the rate of 8 kg per second. सुनना ध्यान से बेटा what I'm saying, please listen carefully what I'm saying. Fluid is entering at the inlet, fluid is entering at the rate of 10 kg per second. At the outlet fluid is leaving at the rate of 8 kg per second. Where is the remaining 2 kg per second रे बाबा? Where is remaining 2 kg per second रे बाबा? ये बाकी का 2 kg per second कहां चला गया रे बाबा? Where is remaining 2 kg per second? Anyone in the class? Anyone in the class can tell me? कोई मुझे बताएगा ये बाकी का 2? अरे try to understand रे बाबा चंपा। In 1 second 10 kg of fluid is entering. In 1 second 8 kg of fluid is leaving. Where is the remaining 2? That is getting stored. That is getting stored within the control volume. Yes, that is basically the rate of change of mass within the control volume. Yes, you are absolutely correct. You people are very good. You people are very good. Yes, absolutely correct. This 2 kg per second is the rate of change of mass within the control volume. आपको ये पता कैसे चला? आपको ये पता कैसे चला कि ये 100% अंदर ही होगा? Because you know the conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed. वो कहीं तो होगा। अगर 1 सेकंड में 10 kg एंटर किया, अगर 1 सेकंड में 8 kg लीव किया, तो बाकी का 2 अंदर रह गया। Because you know the conservation of mass. मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। This is your conservation of mass. You already know it. अरे आपने कैलकुलेशन करी, आपने कैलकुलेशन करी, आपने क्या कैलकुलेशन करी? आपने बोला 10 kg per second is the rate at which mass is entering the control volume. 8 kg per second is the rate at which mass is leaving the control volume. So 100% remaining 2 अंदर ही होना चाहिए। 10 is equal to 8 plus 2. This is your conservation of mass. यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। यस यस यस, वेरी गुड। दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा। यस, दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत बढ़िया। अरे चंपा लकट है रे बाबा, दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको मैथमेटिकली कुछ लिख सकता हूं? कोशिश करता हूं। देखो, लेट मी से
mass flow rate coming in is represented by m dot I. Let me say mass flow rate going out is represented by m dot O, and let me say the rate of change of mass within the control volume is represented by dm by dt of the control volume. तो यार मैथमेटिकली 10 बराबर 8 प्लस 2 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली थोड़ा और बेहतरीन तरीके से, m डॉट आई इज इक्वल टू m डॉट ओ प्लस dm by dt ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम. ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ऐसा लिखा जा सकता है क्या? जल्दी से बताओ. बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है. यही है कंजर्वेशन ऑफ मास. m डॉट आई इज इक्वल टू m डॉट ओ प्लस dm by dt ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, वेयर m डॉट आई इज द मास फ्लो रेट कमिंग इन, m dot o is the mass flow rate going out, and dm by dt is the rate at which mass is changing within the control volume. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? I hope each and everyone is clear till here. अरे टाइप करो रे बाबा चैट बॉक्स में, आर यू क्लियर टिल हियर? फटाफट से क्विकली टाइपिंग चैट बॉक्स, आर यू क्लियर टिल हियर? यहां तक सब लोग झमाझम क्लियर हैं. I hope each and everyone is crystal clear till here. वट्ठा ब्योठे. अब सुनना ध्यान से बेटा, अब सुनना ध्यान से. लिसन केयरफुली. ये नंबर है ना, दिस इज जस्ट द नंबर ओनली. ये 8 भी हो सकता था, ये 10 भी हो सकता था. अगर ये 8 होता, ये 10 होता, तो ये कितना होता? इफ द mass flow rate coming in is 8 kg per second, if the mass flow rate going out is 10 kg per second, then what will be the rate of change of mass within the control volume? अरे सिंपल कैलकुलेशन है. 1 सेकंड में 8 kg अंदर आया, 10 kg बाहर गया 1 सेकंड में, मतलब अंदर से ये एक्स्ट्रा 2 kg बाहर गया ना. सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? -2 kg पर सेकंड. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड -2 kg पर सेकंड? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से एक और कहानी. लेट अस सपोज 10 kg of the mass is entering the control volume in 1 second and 10 kg of mass is leaving the control volume in 1 second. Then what is the rate of change of mass within the control volume? तब क्या होगा? If m dot I is 10 kg per second, m dot O is 10 kg per second, then what will be dm by dt of the control volume? 0, शून्य. Yes or no? 100% it will be शून्य. तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं where dm by dt of the control volume can be positive, can be negative, can be 0. पॉजिटिव कब होगा? when m dot I is more than m dot O. नेगेटिव कब होगा? when m dot O is more than m dot I. 0 कब होगा? when m dot O is equal to m dot I. ये फटाफट से कंफर्म कर दो रे बाबा. I hope each and everyone is clear till here. अरे बोलो रे बाबा, are you clear till here? अरे ब्योठे. This is your conservation of mass. यही है, बस इतना ही है conservation of mass. m dot I is equal to m dot O plus dm by dt of the control volume. The mass flow rate which is coming in is equal to mass flow rate going out plus rate of change of mass within the control volume. And you have to understand dm by dt can be positive, negative or शून्य. आर यू क्लियर? ओहो हो, वट्ठा ब्योठे. चलो रे बाबा. कमान. Now listen carefully. Let me say the rate at which energy is entering is 100 joule per second. That means 100 watt. Let me say the rate at which energy is leaving. Let me say the rate at which energy is leaving is 80 watt, 80 joule per second. सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं. Let me say the rate at which energy is entering. जिस रेट से एनर्जी एंटर कर रही है that is 100 joule per second. अरे चंपू, joule per second is watt ना रे बाबा. In 1 second 100 joule of energy is entering. Let me say the rate at which energy is leaving, that is your 80 joule per second. Where is remaining 20 रे बाबा चंपा? ये बाकी का 20 कहां है? Where is remaining 20?
वेयर इज रिमेनिंग 20? ये बाकी का 20 कहां चला गया रे बाबा? ये बाकी का 20 कहां चला गया रे बाबा? वेयर इज रिमेनिंग 20? वेयर इज रिमेनिंग 20? बोलो कहां है, कहां है, कहां? हा, ओहो हो, यस, 20 joule of energy is getting stored within the control volume. The rate at which energy is getting stored within the control volume is 20 watt. यही आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल आपने सही बताया बेटा। अरे जैसे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तभी तो आपने हिसाब लगाया। अरे 100 वॉट से अंदर आया, 80 से बाहर गया, बाकी का 20 अंदर। यही है, बस खत्म। कॉमन सेंस से पढ़ाएंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आ जाओ रे बाबा, अब पढ़ेगा इंडिया थर्मोडायनामिक्स, अब बढ़ेगा इंडिया। ध्यान से देखना बेटा, आपने क्या कैलकुलेशन की थी? 100 इज इक्वल टू 80 प्लस 20। अरे यही तो कॉमन सेंस से बताया था। द रेट एट विच एनर्जी इज कमिंग इन इज 100 वॉट, द रेट एट विच एनर्जी इज लिविंग इज 80 वॉट। सो डी बाई डी टी इज वॉट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज हाउ मच? 20 वॉट। देखो नाम दे देते हैं ना, थोड़ा सा टेक्निकल खेल लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल खेल लेते हैं। देखो, लेट मी से दिस इज E डॉट आई, let me say this is E dot O, then what will be this? dE by dt of the control volume. तो technically can I write in this way? E dot I is equal to E dot O plus dE by dt of the control volume. बोलो रे बाबा चंपा, Can I say? बोलो रे बाबा चंपा। This is equation number A. This is your equation number B. क्या है ये? ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। E डॉट आई इज इक्वल टू E डॉट O प्लस dE बाई dt ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? फटाफट से कंफर्म कर दो, फटाफट से कंफर्म कर दो। यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। अच्छा अब देख लो ध्यान से, वेयर dE बाई dt ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। पॉजिटिव कब होगी? when E dot I is more than E dot O. When this d by dt will be negative. एक एग्जाम्पल दे देता हूं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं, सुन लो रे बाबा। Let me say the rate at which energy is coming in is 80 watt. Let me say the rate at which energy is going out is 100 watt. Let me say the rate at which energy is coming in is 80 watt. The rate at which energy is going out is 100 watt. Then can you tell me what will be dE by dt of the control volume? 20 minus 20 ना। अरे एक सेकंड में 80 जूल की एनर्जी अंदर आई, एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी बाहर गई। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम? माइनस 20 वॉट। बहुत बढ़िया। When E dot O is more than E dot I. और शून्य कब होगी? अरे चंपा, शून्य कब होगी? When E dot O is equal to E dot I. ये कंफर्म कर दो बेटा फटाफट से, फटाफट से कंफर्म कर दो, ये फटाफट से कंफर्म कर दो। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक कंफर्म कर देंगे बेटा, यहां तक कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, फटाफट से चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे यहां तक। वेरी गुड बेटा मेघा, सोमेश वेरी गुड, संजय वेरी गुड। क्या ही तो बात है। आर सारे नेगी सोल्जर्स लाइव है रे बाबा। व्हाट अ ब्यूटी।
फटाफट से कंफर्म कर दो, फिर आगे चलेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर क्लियर हो गया तो चलते हैं आगे बाबू। ये लाइक का बटन दबाने में शर्माते क्यों रे बाबा इतना? ये लाइक का बटन वह दब जाना चाहिए रे बाबा। वाठा बैठे, ये लाइक का बटन दब जाना चाहिए रे बाबा। इतने बच्चे लाइव हैं, लाइक इतने कम हैं, काहे रे बाबा। चलो, कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गई। अब चलेंगे आगे। एनर्जी इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। आपको मजा आने वाला है, अब आपको मजा आने वाला है। देखो, लेट मी से दिस इज इनलेट, let me say this is outlet, fine. Let me say the mass flow rate coming in is m dot I. Let me say mass flow rate going out is m dot O. बहुत बढ़िया। अब देखो, सुनना, जो फ्लूइड एंट्री कर रहा होगा, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से। अब ये बहुत खतरनाक चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रेड कलर का दिखाते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हाँ, सुनना बेटा ध्यान से। कैन आई से द फ्लूइड विच इज एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम। फ्लूइड की अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी ना बेटा, फ्लूइड की अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी ना। अरे जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी ना। लेट मी से द इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक internal energy of the fluid at the inlet is small ui. Let me say the specific. बेटा what is the meaning of specific? चंपू को समझ में नहीं आया सर ये स्पेसिफिक क्या हो गया? अरे इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास इन जूल पर केजी रे बाबा। Let me say the specific internal energy of the fluid at the inlet is ui, small ui. अच्छा, जब ये फ्लूइड अंदर आ रहा होगा, when the fluid is coming in, ठुमक, it will be having some velocity ना, it will be having some velocity ना। Let me say the velocity of the fluid at the inlet is a small चंपू small v, I am representing specific volume, तो confusion नहीं करना है रे बाबा। That is the reason why I am writing ci। सर ये C क्या है? अरे वेलोसिटी। अरे बाबा चंपू, ये चंपू बेटा देख ले इधर, m डॉट इज मास फ्लो रेट, m डॉट इज मास फ्लो रेट, स्मॉल u इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? C इज व्हाट? वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, यहां तक सब क्लियर है। अब देखो, ये है डेटम लाइन। अरे यार ये येलो वाली लाइन छुप गई, मैं दिखाता हूं। ये येलो लाइन दिख रही है, येलो डट्टी फेलो वाली लाइन दिख रही है। हाँ, ये आपका डेटम है। तो ऑफ कोर्स इनलेट इज हैविंग सम पोटेंशियल हेड ना, from this datum line inlet is having some potential head na. So let me say the potential head is Zi। यहां दिखाऊं क्या? सर यहां दिखा दो, दिखा देता हूं रे बाबा। चंपू बोले और मैं ना दिखाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख बेटा चंपू, दिस इज लेट मी से डेटम हेड। तो ये जो हाइट है ना चंपा, ये जो हाइट है ना बेटा, यही है हाँ पोटेंशियल हेड। Let me say potential head is Zi। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी,
when the fluid is entering the control volume, internal energy of the fluid is also entering the control volume. Fluid is coming inside with some velocity. Kinetic energy of the fluid is also entering the control volume. Fluid is having some potential head. Its potential energy is also entering the control volume. ये बात क्लियर है सबको? Are you clear till here बेटा? फटाफट से टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, इतनी बात समझ में आ गई? I hope each and everyone is clear till here. यहां तक यस किशोर छा गए गौरव, यहां तक क्लियर है बेटा सब लोग? जल्दी से बताओ. I hope each and everyone is clear till here. ये हुई ना बात. अब सुनना बेटा, सुनना. याद आ रहा है? ये है चंपो, एकदम कंट्रोल सरफेस में बस अंदर जाने को रेडी है. पीछे था डंपू. डंपू इज पुशिंग द चंपो टू मेक श्योर चंपू इज एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम. चंपू इज क्रॉसिंग द कंट्रोल सरफेस एंड एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम. याद आ रहा है ना? अरे इसके पीछे कौन लगा था? इसके पीछे कौन लगा था रे बाबा? डंपू लगा हुआ था ना? अरे इसके पीछे डंपू लगा हुआ था ना? सो डंपू इज डूइंग some work on Champu so that Champu is crossing the control surface and entering. वो वर्क क्या होता था? याद आ रहा है किसी को? What was that work? अरे बोलो रे बाबा. What was that work? वो वर्क क्या होता था? What was that work when Champu was pushing the Champu to make sure Champu is crossing the control surface and entering the control volume? What was that? क्या होता था वो? Yes, 100% क्या होता था? फ्लो वर्क. तो बेटा याद रखना, डंपू ने जो फ्लो वर्क किया चंपू पर, अब वो चंपू की एनर्जी है ना, तो वो फ्लो वर्क इज आल्सो एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम अलोंग विद चंपू. अरे डंपू ने चंपू को धक्का दिया, चंपू पर कुछ वर्क किया, अब वो एनर्जी हो गई चंपू की. That energy is also entering along with चंपू ना. तो देखो फ्लूइड के साथ कौन कौन सी एनर्जी एंटर करेगी? Along with the fluid, what are the energies will be entering? Internal energy of the champu, kinetic energy of the champu, potential energy of the champu, plus the flow work done on champu. This is also going to enter. Are you getting this? यहां तक सब लोग क्लियर है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन. अरे जियो रे लाला. एक्सीलेंट. Let me say at the inlet pressure is PI, specific volume is VI. You can recollect PI VI will be giving me the magnitude of flow work at the inlet, है ना? तो कंफ्यूज मत हो जाना रे बाबा. ये Z क्या है? ये Z है पोटेंशियल हेड. ये Z क्या है? ये Z है पोटेंशियल हेड. What is this P? Pressure. What is this small v? Specific volume. Oh ho. बहुत बढ़िया. Let me say the fluid which is coming out, it is having the mass flow rate m dot o. Let me say it is having the internal energy, specific internal energy UO, velocity CO, potential head ZO. Let me say pressure is PO, specific volume is VO. बेटा ध्यान से सुनना, अब आपको मजा आने वाला है. ध्यान से सुनना. चलो इसको भी दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर ही हो जाए एकदम बेहतरीन तरीके से. इसको भी दिखा देता हूं, देखना बेटा ध्यान से. अरे देख लो रे बाबा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही खतरनाक मजा आने वाला है बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको आपने समझ लिया ना मजा आ जाएगा. ये देखो, दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट विच इज अबाउट टू गो आउट, राइट?
So when this fluid element is going out 100%, whatever the internal energy this fluid is having, that is also going out 100%. Whatever the kinetic energy this fluid is having, that is also going out 100%. whatever the potential energy this fluid is having, that is also going out. इसके साथ साथ एक और एनर्जी बाहर निकलेगी, वो भी बता देता हूं. इसके साथ साथ एक और एनर्जी बाहर निकलेगी, वो भी बता देता हूं. देखो ध्यान से, देखो ये है डंपो, ये है डंपू. अरे डंपू इज डूइंग सम वर्क टू मेक श्योर दिस चंप, अरे रे 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 रे, दिस चंपू इज गोइंग आउट. वो कौन सा वर्क था रे बाबा? व्हाट वाज दैट वर्क? व्हाट वाज दैट वर्क? डंपू इज डूइंग सम वर्क ऑन चंपू सो दैट इट विल क्रॉस द कंट्रोल सरफेस एंड इट विल एग्जिट द कंट्रोल वॉल्यूम. फ्लो वर्क ना, फ्लो वर्क एट आउटलेट. तो वो एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी विद दिस चंपू एंड दैट विल आल्सो कम आउट. बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया गौरांग. सोमेश छा गए रे बाबा, छा. और व्हाट अ ब्यूटी. अब तो आप लोग मचा दोगे. अगर नेगी सोल्जर्स को ये समझ में आ गया तो मचा दोगे. यू आर गोइंग टू रॉक वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटा? जितना मैंने अभी तक आपको समझाया ये सब समझ में आ रहा है? जितना भी मैंने आपको समझा. वेरी गुड, वेरी गुड सतीश, वेरी गुड सौरभ, रितेश, अकुला, संजीवा, वेरी गुड बेटा. यस, चलो आगे चलें, आगे चलें बेटा. वी आर डिस्कसिंग द एनर्जी इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम. जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा है सब क्लियर है? एम डॉट, ये डॉट है रे बाबा. m dot is mass flow rate, small u is the specific internal energy, small c is the velocity, z is the potential head, p is the pressure, small v is the specific volume. ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से बेटा. Let me say heat is getting supplied to the control volume at the rate of q dot. चंपू इज आस्किंग, सर 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 आपने सर क्यू डॉट सर सर ये हीट सप्लाइड क्यों लिया सर? सर हीट रिजेक्टेड भी तो ले सकते थे. यस चंपू, यू कैन टेक दैट आल्सो. यस चंपू, यू कैन टेक दैट आल्सो. बट मैंने क्या अजम्पशन दिया था? व्हाट इज द साइन कन्वेंशन वी आर टेकिंग? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव. अपन लोग पॉजिटिव है ना रे बाबा? We are the positive people. That's why I'm taking heat supplied. अब देख ले, तेरे को हीट रिजेक्ट, चंपू को नेगेटिव बनना है रे बाबा. चंपू को नेगेटिव बनना है रे बाबा. नहीं बनेगा मेरा चंपू नेगेटिव. ओके गुड. सो मैंने हीट सप्लाइड रेट पॉजिटिव के लिए ले लिया. चाहे तो आप इसका रिवर्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट मी से द रेट एट विच कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, द रेट at which control volume work is done by the system is W dot CV. ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोग? ये भी मैंने इसलिए लिया है वर्क डन बाय द सिस्टम बिकॉज दैट इज पॉजिटिव. ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से, आगे चलते हैं. कैन आई राइट according to conservation of mass, according to conservation of mass, what will happen beta? Can I say this m dot I is equal to m dot O plus what? dm by dt of the control volume. यही तो बताया था. m dot I is equal to what? m dot O plus dm by dt of the control volume. ये फटाफट से कंफर्म करो, ये फटाफट से कंफर्म करो. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया. कैन आई से according to conservation of energy, the rate
at which energy is coming in is equal to rate at which energy is going out plus d by dt of the control volume. ये फटाफट से कंफर्म करो बेटा. फटाफट से कंफर्म करो ये वाला पार्ट. ये मुझे कंफर्म कर दो फटाफट से. क्लियर है बेटा यहां तक? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. फटाफट से कंफर्म कर दो. एकदम 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया. अब देखना बेटा, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेट एट विच एनर्जी इज कमिंग इन. एक तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है. कैन आई से बेटा दिस इज द एनर्जी कमिंग इन. अरे दिस हीट इज द एनर्जी कमिंग इन क्यू डॉट. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. क्यू डॉट. इज देयर एनी एनर्जी कमिंग इन? कोई और एनर्जी भी अंदर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है. When I'm having the champu here at the entry, whatever the internal energy this fluid is having, that is coming in. Whatever the kinetic energy this fluid is having, that is also coming in. Whatever the potential energy this fluid is having, that is also coming in. And whatever is the flow work done on this fluid element, that is also coming in. That is also coming in. तो देखना बेटा, what is the rate at which internal energy is coming in? Can I say the rate at which internal energy is coming in is m dot I small ui? Can I say the rate at which internal energy is coming in is m dot I? अरे rate निकालना है ना. So what I'm going to do, mass flow rate multiplied by specific internal energy. This is the rate of internal energy. So m dot I ui. What is the rate at which kinetic energy is coming in? Half m dot I ci square. What is the rate at which potential energy is coming in? m dot I c z I. अरे mgh ना, रेट में ले रहा हूं तो डॉट लगा दिया बेटा. आई होप everyone is able to understand what is the meaning of these dots. These are the mass flow rate, है ना. बात समझ में आ रही है? And 100% that flow work is also entering the control volume. So m dot I pi vi. Beta, don't have the bad concept. When I'm talking about the flow work, then it is negative. But here I'm not counting the work. I'm not counting that flow work as work. I'm counting that flow work as energy. When the Dampu has done the flow work on Champu, now that is the energy of Champu which is entering the control volume. That is the energy carried by Champu which is entering the control volume. That is the energy carried by the fluid which is entering the control volume. So that flow work will be the energy entering. M dot I pi vi is the rate at which energy is entering the control volume, is equal to the rate at which energy is leaving the control volume. What is the rate at which energy is leaving the control volume? ये देखो, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम W डॉट CV. देयर इज नो डाउट. W डॉट CV. नाउ when the fluid is going out, its internal energy is also going out. M dot O small u. Its kinetic energy is also going out, half m dot O co square. Its potential energy is also going out, m dot O gzo. And whatever the flow work is done on that Champu as the outlet, that is also going out, m dot O povo. Plus of course dE by dt of the control volume. बेटा ध्यान से सुनना. This is your, this complete term is your E dot I, the rate at which energy is coming. These are the all energies coming in. This is the rate at which energy is going out. And this is d by dt. ये कंफर्म करो. यहां तक क्लियर है? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? एकदम दिलों की बौछार हो जानी चाहिए अगर समझ में आ गया तो.
इसके बाद तो अब कुछ नहीं है. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ देयर इज नथिंग. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ देयर इज नथिंग. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये मैंने कैसे लिखा है, ई डॉट आई की जगह उतना सब क्यों लिखा, ई डॉट ओ की जगह उतना सब कुछ क्यों लिखा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, ई डॉट आई की जगह मैंने क्यू डॉट प्लस एम डॉट आई स्मॉल यू आई प्लस हाफ एम डॉट आई सी आई स्क्वायर प्लस एम डॉट आई जी जेड आई प्लस एम डॉट आई पी आई वी आई क्यों लिखा है, तो आपको समझ में आ गया है. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है रे बाबा. अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्यू डॉट प्लस हाफ एम डॉट आई सी आई स्क्वायर प्लस एम डॉट आई जी जेड आई प्लस एम डॉट आई यू आई प्लस पी आई वी आई. बेटा ये समझ में आया यहां पर क्या हुआ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? अरे मैंने क्या किया है, what I have done is I have taken this term and this term together and I have taken m dot I common ui plus pi small vi. I hope each and everyone is able to understand. Is equal to what? W dot cv plus half m dot o co square plus m dot o z zo plus m dot o small uo plus po small vo plus de by dt of the control volume. Array this d by dt of the control volume is coming from the conservation of energy na. E dot I is equal to E dot O plus d by dt of the control volume, है ना. I hope each and everyone is clear till here, है ना. अब देखो बेटा क्यों मैंने ऐसा लिखा. एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैंट. ये क्या है रे बाबा, व्हाट इज दिस, ये क्या है रे बाबा. ओहो हो, स्मॉल यू आई प्लस पी आई स्मॉल वी आई, ये क्या है रे बाबा. टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है रे बाबा. टाइप करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे रे बाबा. स्पेसिफिक एंथैल्पी है. दिस इज स्मॉल एच आई, दिस इज योर स्मॉल एच ओ. यार कितने लोगों को समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से. Q डॉट इज इक्वल टू, इतना सिंपल कर देंगे बेटा सबको समझ में आएगा, पूरा इंडिया समझेगा रे बाबा. Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस, अब देखना बेटा यहां ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, हाफ M डॉट O CO स्क्वायर माइनस हाफ M डॉट I CI स्क्वायर. करेक्ट. अरे ये वाला इधर ला रहे हैं, ये सब के सब को इधर फेंक रहे हैं पापा. इसको मैंने इसके साथ लिखना है, इसको मैंने इसके साथ लिखना है और इसको मैंने इसके साथ लिखना है. तो ध्यान से देखना, प्लस m डॉट, ऐसा लिखता हूं, m डॉट o g z o माइनस m डॉट i z z i प्लस m डॉट o h o माइनस m डॉट i h i प्लस क्या बचा, d बाई dt ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम. ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई बेटा. वो क्या हुआ है यहां पर, ये हाफ m डॉट i c i स्क्वायर m I g z I m dot I h I whatever I was having on the left hand side I brought to the right hand side. उन सबको मैं सीधे हाथ पर ले आया. यहां तक सब लोग क्लियर हैं. अब देखो बेटा, what is this, what is this, this is the kinetic energy rate at the outlet, this is kinetic energy rate at the outlet. What is this, this is kinetic energy rate at the inlet. अरे half mc square is what, kinetic energy. So half m dot c square will be what, kinetic energy rate. So what will be half m dot o co square, kinetic energy rate at the outlet. I am having kinetic energy rate at the outlet
minus kinetic energy rate at the outlet. What is the meaning of that? Rate of change of kinetic energy I'm getting, है ना? So can I say I'm getting Q dot is equal to W dot CV plus delta K dot rate of change of kinetic energy. अब यहां देखना बेटा, मेरे पास क्या है? M dot GZO potential energy rate at the outlet minus potential energy rate at the inlet. So I am getting rate of change of potential energy plus what is this? Enthalpy rate at the outlet minus enthalpy rate at the inlet. So what I am getting? Rate of change of enthalpy plus dE by dt of the control volume. How many of you are able to understand? बेटा this is your, यही है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे बेटा. This is your steady flow energy. यहीं से आएगा. This is not your steady flow energy equation, but यहीं से आएगा. This is your energy equation. This is your energy equation for an open system. और बेटा एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, इसको एक और नाम दिया गया है. दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम. अगर यहां तक क्लियर तो दिलों की बौछार हो जाए रे बाबा. इफ यू आर क्लियर टिल हेयर, दिलों की बौछार हो जाए रे बाबा. अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो दिलों की बौछार हो जाए रे बाबा. फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा. अरे मजा आ गया रे बाबा. ओ व्हाट ब्यूटी. क्रिस्टल क्लियर है रे बाबा, क्रिस्टल क्लियर है रे बाबा, झमाझम है रे बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अरे ये दिलों की बौछार हो जाए, एक लंबी लाइन लग जाए दिलों की, क्या ही तो बात है. आग लगा देंगे रे बाबा. वेरी गुड वेरी गुड. प्रतीक्षा अलाउद्दीन छा गए गरो. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ये हुई ना बात. एक्सीलेंट है रे बाबा. ये हुई ना बात. बहुत बढ़िया. माय गॉड. ये हुई बात, ये हुई बात, ये हुई ना बात. चलो अब ध्यान से सुनना बेटा. मान लो साथू बेटा सुनना ध्यान से. मान लो this is the open system. I want to convert this open system into closed system. ये मेरा open system है, ये मेरा open system है. इसको अगर मैं closed system में convert करना चाहूं तो क्या कर दूं बेटा? This is my open system. If I want to convert this open system into closed system, what to do? क्या किया जाए कि ये open system closed system में convert हो जाए? अरे ये inlet पे plug लगा दे रे बाबा, बंद कर दे रे बाबा चंपू इसको. और जैसे ही इसको बंद किया, the moment I'm closing this, m dot I हो गया शून्य. चंपू आउटलेट पर क्लोज कर दे रे बाबा. जैसे आउटलेट को भी क्लोज कर दिया, m dot O हो गया शून्य. m dot I इज शून्य, m dot O इज शून्य. और जैसे ही m dot I, m dot O शून्य हो गए, ये शून्य, 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 ये शून्य. तो यार बचेगा क्या? जरा देख लो. फॉर क्लोज्ड सिस्टम, m डॉट I इज शून्य, m डॉट O इज शून्य. इसका मतलब क्या हो गया? द मीनिंग इज डेल्टा के ई डॉट शून्य, डेल्टा पीई डॉट शून्य, डेल्टा एच डॉट शून्य. और अगर ये तीनों शून्य हो गए तो बच क्या रहा है? Q डॉट. अरे मजा 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 मजा. Q dot is equal to W dot CV plus
dE by dt of the control volume। अब वो कंट्रोल वॉल्यूम काहे का, वो तो कंट्रोल मास हो गया, अंदर बाहर सब बंद हो चुका है रे बाबा। ये कंट्रोल वॉल्यूम हटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस। अरे ओपन सिस्टम के इनलेट आउटलेट जैसे ही बंद करे, क्लोज सिस्टम बन गया। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम इज कन्वर्टिंग इनटू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम। क्या ही तो बात है रे बाबा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है रे बाबा, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है रे बाबा, व्हाट अ ब्यूटी। अरे मजा 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 मजा, आग लगा दी रे बाबा, आग लगा दी रे बाबा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो मजा आ गया बेटा, आज तो आपका झमाझम फ्राइडे हो गया, मतलब मजा ही आ गया। आई एम एंजॉइंग। आपको पता है आज मैं 2 बजे से क्लास ले रहा हूं। टुडे आई एम टेकिंग द क्लास फ्रॉम 2 o'clock। 2 बजे से लगभग 3:40 तक ली थी क्लास, फिर 4 o'clock आई स्टार्टेड, अप्रोक्सीमेटली 5:30 तक ली थी क्लास, फिर अभी 5:50 पर स्टार्ट करी थी और अभी 7 हो रहा है, और अभी मेरी प्लस की क्लास भी है 8:30 से। आई एम एंजॉइंग। ये होता है मजा, दिस इज कॉल्ड मजा 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 मजा। फुल झमाझम फ्राइडे है रे बाबा आज तो मेरा। अरे ब्यूटी, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, इसे बोलते हैं मजा। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना, कुछ चीजें बता रहा हूं। स्टडी फ्लो देखो, वी गॉट द एनर्जी इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम, मिल गया अपन को। वी गॉट एनर्जी इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम, but my main aim is to find steady flow energy equation। तो मैं चुपके से क्या करूंगा, स्टडी फ्लो पहले समझ लेंगे, वी विल अंडरस्टैंड स्टडी फ्लो, एंड चुपके से ये स्टडी फ्लो को एनर्जी इक्वेशन में डाल देंगे। ये जो स्टडी फ्लो की कंडीशन है इसको एनर्जी इक्वेशन में डाल देंगे, और वही एनर्जी इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अरे देख रहे हो, देख रहे हो, चंपू चुपके से आएगा और चंपी को अपना सरनेम दे देगा। स्टडी फ्लो चुपके से आएगा और एनर्जी इक्वेशन को अपना सरनेम दे देगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। व्हाट अ ब्यूटी। तो समझ लो स्टडी फ्लो होता क्या है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो इज द फ्लो where properties doesn't changes with the time at a particular location। बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। Let me say I am having some open system given by this. Let us suppose I am having some open system given by this। क्या ही तो बात है रे बाबा, क्या ही तो बात है रे बाबा, फुल यूज है टेक्नोलॉजी का, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी फ्लो। लेट मी से हेयर एट द इनलेट प्रेशर वाज 5 बार। मान लो यहां कहीं पे प्रेशर इज 4.5 बार। लेट मी से हेयर समवेयर प्रेशर इज 4 बार, है ना। Let me say here the pressure is 3 bar। Let me say here the pressure is 2 bar। अब ध्यान से देखना बेटा, the meaning of steady flow is this pressure is not going to change with the time। It can be different at different places, doesn't matter। हो सकता है यहां पर it is quite possible here the pressure is 5 bar, here 4. अरे चंपो, here the pressure is 5 bar, here 4.5 bar, 4 bar, 3 bar, 2 bar। Yes, it is quite possible at different places I can have different values of pressure fluid properties, but whatever I am having it is not going to change।
चंपू मेरा आफ्टर 137 ईयर्स भी आएगा तो यहां 5 बार रहेगा. If my Champu is coming to this place even after 137 years, he will be finding 5 bar only. If he is coming here after at this point after 137 years, 4.5, 3 bar, 2 bar. तो ध्यान से देखना बेटा. A flow is said to be steady flow if the thermodynamic properties doesn't change with the time at a particular location, right? Thermodynamic properties may vary along the space coordinate but don't vary with the time. अब मैं आपको इसका मैथमेटिकल बताता हूं, सुनना ध्यान से. मैथमेटिकली for steady flow dm by dt of the control volume will be 0. dE by dt of the control volume will be equal to 0. अगर मेरा steady flow हो रहा है then the rate of change of mass within the control volume, rate of change of energy within the control volume must be शून्य. बात समझ में आ रही है? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? है ना? I hope each and everyone is clear till here. For steady flow, rate of change of mass within the control volume must be शून्य. Rate of change of energy within the control volume must be शून्य. यहां तक सबको क्लियर है. अब एक चीज और देख लेना. Can I say one thing beta? According to conservation of mass, what I am having beta, m dot I is equal to m dot O plus dm by dt of the control volume. अब ध्यान से देखना. For steady flow, what is the dm by dt of the control volume? शून्य. अरे स्टडी फ्लो के लिए तो ये शून्य है. For steady flow this is शून्य. So what I'm getting, right baba? Can I say m dot I is equal to what? M dot O, and this can be written as what? Can I say m dot? तो याद रखना बेटा, जब भी मेरे पास स्टडी फ्लो होगा तो मैं एक काम करूंगा, m डॉट आई m डॉट ओ ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ m डॉट लिखने वाला हूं. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो. Whenever I will be having the steady flow, whenever I'm having the steady flow, instead of writing m dot I m dot O, I will do only one thing. I will be writing m dot, because m dot I is equal to m dot O. Only m dot I can write. बात समझ में आ रही है? ये स्टडी फ्लो का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली समझ में आ गया. d by dt is 0, dm by dt is 0. Of course, within the control volume, dm by dt within the control volume is 0, d by dt within the control volume is 0. m dot I is equal to m dot O is equal to m dot. यहां तक बेहतरीन तरीके से क्लियर है. चलो तो आ जाएं अब मुद्दे की बात पर. ये तो आपको पता है बेटा, ज्ञान गंगा वगैरह ये सब आपको पता है. नहीं पता है जिसको बता देता हूं बेटा. इन दिस ज्ञान गंगा whatever the free classes I have taken, everything is arranged in a proper systematic manner. Thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, ATD, PYQs of X, everything is arranged. सर ये ज्ञान गंगा तक कैसे पहुंचेंगे? tinyurl.com/negitan code ये डाल देना, आप पहुंच जाओगे. इस तरीके से दिखता है. आ जाओ मुद्दे की बात पर. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. आर यू रेडी फॉर दिस? इसके लिए रेडी हैं? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए रेडी हैं? रेडी हैं बोलो रे बाबा. आर यू रेडी फॉर SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? चलो रेडी हैं. बहुत बढ़िया. देखो ध्यान से फिर. कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू energy equation for an open system. According to energy equation for an open system, derive किया था ना रे बाबा? क्या derive किया था? Q
Q dot is equal to what? W dot CV plus what? Delta KE dot plus what? Delta PE dot plus what? Delta S dot plus what? DE by DT of the control volume. अब ध्यान से देखना बेटा, whatever the term I am having in this energy equation 100% for steady flow, one term will be zero. फटाफट से बताना बेटा कौन सा टर्म जीरो होगा, जरा बताना. For a steady flow, out of these terms, one term will be zero. अरे dE by dt of the control volume is how much? d by dt of the control volume is how much? शून्य. तो what I'm going to get? What I'm going to get? Q dot is equal to what? W dot CV plus what? Delta KE dot plus what? Delta PE dot plus what? Delta. और यही तो है क्या? What is this रे बाबा? ये क्या है? अरे एनर्जी इक्वेशन में चुपके से स्टडी फ्लो की कंडीशन डाल दी, तो ये क्या बन गया रे बाबा? ये बन गया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. बहुत ही सही. ये हुई ना बात. आर यू क्लियर टिल हियर? यहां तक क्लियर है? ये बात हुई ना, ये बात हुई. वेरी गुड बेटा संजय, वेरी गुड चंदन, विश्वजीत, रितेश. क्या ही तो बात है रे बाबा. SFEE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. यहां पर एनीवन इन द क्लास बेटा, व्हाट विल बी डेल्टा KE डॉट, वेयर delta KE dot is equal to what? Half m dot. I have told you for steady flow, m dot 2, m dot O, m dot I, all will be m dot na. So what was delta KE dot? याद है? Half m dot O CO square minus half m dot I CI square. So m dot O, m dot I are m dot only. So half m dot is common. CO square minus CI square. What will be delta P dot? Sir, delta P dot, sir, m dot O G Z O minus m dot I Z. M dot O, m dot I is m dot only रे बाबा. So m dot G Z O minus Z I. And what is delta S dot? M dot common, HO minus HI. What a beauty! किसी को डाउट हुआ है तो पूछ लो भैया. किसी को डाउट है तो पूछ लो भैया. What a concept! ये हुई ना बात. अब तो मजा आने वाला है. अब तो मजा आने वाला है थर्मो का ओपन सिस्टम एनालिसिस का. मचा देंगे रे बाबा. कितने लोगों को आज की पूरी क्लास समझ में आ गई? ये डाउट क्या होता है रे बाबा? ये डाउट क्या होता है रे बाबा? ये डाउट क्या होता है रे बाबा? मेरी क्लास में ये डाउट क्या होता है? अब साहब थर्मो से डर नहीं लगता, गेट से डर नहीं लगता. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नेगी सर इज इक्वल टू नो डाउट. आज तो मजा आ गया. अरे बेटा, लेकिन आपकी अटेंडेंस गिरती जा रही है. ये देखो, इतने कम बच्चे लाइव हैं रे बाबा. ये ऐसा ना करो. फैला दो सबको, फैला दो सबको, फैला दो सबको. यूनिट तो वॉट है बेटा. अरे रेट में लिख रहा हूं ना रे बाबा, रेट में लिख रहा हूं ना. तो वॉट और किलोवाट, वॉट और किलोवाट. स्पेसिफिक में लिखना है, स्पेसिफिक में लिख देता हूं. स्पेसिफिक में क्या होगा? स्मॉल q इज इक्वल टू स्मॉल w CV प्लस डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल PE प्लस डेल्टा स्मॉल h. इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी और किलो जूल पर केजी.
कितने लोगों ने आज की तीनों क्लास अटेंड करी हैं? कितने लोगों ने आज की तीनों क्लास अटेंड करी हैं? क्या ही तो बात है रे बाबा। कितने लोगों ने आज की तीनों क्लास अटेंड कर दी? एकदम पूरा झमाझम फ्राइडे मना लिया। ओहो, पारस ने की है, किशोर ने की है, पिंकू ने की है। वर्थ है क्लास अटेंड करना। मजा आ गया? जितने लोग मेरे साथ 2 बजे से जुड़े हुए हैं, मजा आ गया? अरे काफी स्टूडेंट्स हैं रे बाबा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जितने लोग 2 बजे से जुड़े हुए हैं, आपको एक्सी की पूरी नॉलेज हो गई, आपको एक्सी का पूरा आइडिया हो गया, आपको आईआईटी जेई मेन एडवांस के क्वेश्चंस करवा दिए। पहली क्लास है, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट क्लास है, नो प्रॉब्लम। यस आईआईटी वाज बेस्ट, वेरी गुड। आईआईटी वाले में मजा आ गया। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कोई इतना इजी वे में एक्सप्लेन कर सकता है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। यस, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज स्मॉल यू प्लस पी स्मॉल वी। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा ना? लास्ट क्लास की पीडीएफ शेयर कर दी थी ना बेटा? लास्ट क्लास की पीडीएफ शेयर कर दी थी मैंने। अच्छा, लास्ट मतलब आज की अभी तक नहीं करी, टाइम ही नहीं मिला रे बाबा अभी शेयर करने का। कर दूंगा आज की क्लास की तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। आज की क्लास की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सर प्लीज पूरा थर्मो पढ़ाना। ये 150 बच्चों में क्या पूरा थर्मो पढ़ाना रे बाबा? बात हुई थी 500 की। एकदम यार, आप लोग ना फैलाते नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। आप लोग को बोल दिया कि यार शेयर कर दो। मैंने जब आपको बोल दिया इंडिया का बेस्ट थर्मोडायनामिक्स होने वाला है तो होने वाला है। इंडिया का बेस्ट थर्मोडायनामिक्स होने वाला है तो होने वाला है ना? तो शेयर कर दो। शेयर करने में आप घबराया मत करो। सर आपको खाने का टाइम मिलता है? हाँ, 5000 लाएंगे गुरु, बहुत बढ़िया। मैं कर दूंगा ना राजेंद्र, आई विल डू बेटा। मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा, रात तक मैं कर दूंगा आपको। 2 बजे वाला भी सेशन शेयर कर दूंगा, पीडीएफ 4 बजे वाले का भी कर दूंगा और इसका भी कर दूंगा। काइनेमेटिक्स देख लिया रे बाबा कुंदन ने? बेटा मैंने काइनेमेटिक्स भी पढ़ाया हुआ है, जिसको पढ़ना हो वहां जाके पढ़ लो। सर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा रे बाबा। आपको पूरा स्केड्यूल पता है ना? आपको पूरा स्केड्यूल पता है ना? है क्या इसमें? इसमें नहीं है। पूरा स्केड्यूल बता दिया ना मैंने। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। मैंने प्लान कर लिया बेटा, मैंने प्लान कर लिया है। जो मैंने स्केड्यूल आपको दिया वो मैं फॉलो करने वाला हूं। उसके बाद की बात में है, लेकिन जो मैंने बना दिया। सर के पास बहुत पोटेंशियल एनर्जी है। झमाझम शेयर करो रे बाबा। एफएम के पूरे लेक्चर हैं बेटा। जिनको एफएम पढ़ना है यहां जाके पढ़ लो, जिनको एफएम पढ़ना है यहां जाके पढ़ लो। tinyurl.com/negi10 कोड। ठीक है, सर पूरा एफएम देखा, मजा आ गया, वेरी गुड। ये है ज्ञान गंगा, यहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। मजा आ गया, छा गए गौरव, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ये YouTube चैनल पे आपको लगता है, इस YouTube चैनल पर आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, इस YouTube चैनल पर आकर आपको लगता है कि आप लोग के लिए कुछ बढ़िया हो रहा है, मुझे फीडबैक दो जरा। बीइंग द चैनल मैनेजर थोड़ा पता चले आप लोग क्या सोचते हो इस YouTube चैनल के बारे में। अनअकैडमी गेट एमई PIXC के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये जो चैनल है जिसको मैं लीड कर रहा हूं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या लगता है आपको?
थैंक यू सो मच दीपक। पीके नाग लगा सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन है सर हमारे लिए, वेरी गुड वेरी गुड, सब बढ़िया, नाइस इनिशिएटिव, वेरी गुड। झमाझम चैनल है रे बाबा, आपका जैसा सर अगर हर क्लास में हो तो बढ़िया बढ़िया, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया। द बेस्ट चैनल फॉर गेट सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स, यस वी आर ऑल्सो ट्राइंग द सेम। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ पर जाए, यहाँ पर आए, मतलब उसको पूरा मजा आ जाए। सो हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बाकी जगह पर थोड़ा थोड़ा करते हैं। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बिकॉज ऑफ दिस चैनल ओनली, वेरी गुड। यूट्यूब मतलब गेट मैकेनिकल, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता रे बाबा, लाखों में एक चैनल है रे बाबा। सर मेरे पड़ोस में शादी थी लेकिन आपकी क्लास लाइव अटेंड करने के लिए शादी में नहीं गया। ओ हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लगे रहो लगे रहो। थैंक यू सो मच पारस, थैंक यू सो मच बेटा, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट चैनल। बाकी आप लोग मुझे फीडबैक दिया करो, आपको ना अगर कुछ लगे कि कुछ चीजें इंप्रूव की जा सकती है तो आप मुझे बताया करो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वो शेयर कर दो, जितना भी आप लोग के लिए बेस्ट हो सकेगा हम लोग ट्राई करेंगे। गेट विदाउट दिस चैनल इज जीरो। सर पूरा इसी चैनल पे डिपेंडेंट हूं सर। K2K में सभी टीचर, मेरी टीम के सारे टीचर बढ़िया हैं बेटा, हर टीचर एक से बढ़कर एक है, हर टीचर लाजवाब है मेरी टीम का, हैंड पिक टीचर्स हैं रे बाबा। थैंक यू सो मच सोमेश, थैंक यू सो मच बेटा, टोटली बेस्ट है रे बाबा। विल यू गेट टाइम टू ईट? बस चल रहा है, आप लोगों का प्यार है रे बाबा। सर एक बार झमाझम हो जाए। एप्टीट्यूड क्लास वी विल ब्रिंग वेरी सून बेटा, जितना जल्दी हो सकेगा एप्टीट्यूड की क्लास लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। सर टेल द बुक फॉर FM न्यूमेरिकल, सुब्रमण्य सॉल्व कर लो। सर एप्लीकेशंस ऑफ SFEE वंस प्लीज, वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा रे बाबा। यस देखो, लुक एट हियर, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, वेयर विल बी यूज दिस SFEE? nozzle, diffuser, turbine, compressor, थ्रॉटलिंग डिवाइस, है ना? ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। थैंक यू संजीवा बेटा। हाइड्रोलिक मशीन्स में करवाऊंगा, इस बार करवाऊंगा, हीट एक्सचेंजर पढ़ा दूंगा ना सोमेश, डोंट वरी बेटा, हीट एक्सचेंजर करवा देंगे। नेगी सोल्जर इस बार मैक्सिमम रैंक देंगे रे पापा, टॉप 100 में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल का वेट टोटल मिला के 27 का आया था, 27, 54, 25 के आसपास रहता है बेटा, 25।
23, 25 ऐसा रहता है। सौरभ वो तो ऑलरेडी एंथैल्पी में काउंट हो गई ना, एंथैल्पी में काउंट हो गई ना, एंथैल्पी में आ तो गई, पीआई वीआई पीओ वीओ। यूट्यूब पर नहीं पढ़ा है बेटा, ट्राई करो ना, सिंगल डिजिट रैंक क्यों नहीं पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल रे बाबा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिंगल डिजिट रैंक आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। हाँ 25 के आसपास मान लो, 25 के आसपास मान लो बेटा। ज्ञान गंगा इज ऑलरेडी अपडेटेड बेटा रविंद्रा, ज्ञान गंगा तो पूरा अपडेटेड है, ज्ञान गंगा इज ऑलरेडी अपडेटेड। ये बताओ कब करवाना है, नोजल डिफ्यूजर करवा देंगे कल, कल नोजल डिफ्यूजर ले ले, कल नोजल डिफ्यूजर ले लेते हैं, जल्दी से बताओ, कल नोजल डिफ्यूजर कर लेंगे, है ना, कल इसको कर लेंगे, एंड देन इसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर टरबाइन कंप्रेसर, फिर उसके प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर थ्रॉटलिंग डिवाइस। ठीक है बेटा।